हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। India and United Nations. That is the most important topic. There is a first point here. Indian has a contribution to UN effort for the peace and discriminant. There is the most important topic arrive here. The United Nations, which is come into the begin on October 24, 1945, has been the most important international organization. Since the Second World War, the formal basis for the UN activities in the UN Charter. The UNA has a vital role in the world affair. For more than 50 years, UNA has helped to the manage relation between the state and regulate a broad range of international activities. It has a work to protect the security of people and promote the peace and development. One way in which the UNA has a contribute to world peace is by taking up the cases of discriminant. India has also contributed emanating to UNA the agreement of efforts. And discriminant is a limitation, reduction, and possible elimination of dangerous like a nuclear weapon. That is the most important. Since the independent India has a constantly pursued their objectives of global discriminant based on the principle of non-discriminations and given to the destructive capacity of nuclear weapon, India has a way believed that a world free of nuclear weapon would be enhanced to the global security. Thus, the India has a way advocate the highest priorities to be given a nuclear discriminant as a first step toward a general and complete discriminant. There is the most important here, but India has a contribute to the UN significantly on discriminant in the term of idea, dissolution, innovative, and the bearings of difference through the action plan. In 1949, India has proposed to the eliminating the use of atomic energy to peacefully purpose and elimination of the nuclear weapon from the national arsenal. In 1950, India suggested the formation of the UN Peace Fund created through the peaceful reduction of arms and directing the amount thus the release toward to development purpose. In 1954, India is advocated the causes for the comprehensive nuclear test ban treaty. India was the first to become a party to the potential test ban treaty in 1963. Hence, India strongly and constant refused to join the treaty. In 1964, India took initially to the pace the items known for is a proliferation of weapon or UN agenda. However, the purpose was defeated by the 1969 carry that the large numbering of countries from going nuclear without firm restriction on the few nuclear weapon country activities. Nuclear non-proliferation threatening, although there is our countries alleged to be opposed to the problem. In 1984, India is launched a six-nation, five-continent-based initiative to along with the Argentina and Greece, Mexico, Sweden, and Tanzania. 4 years later, in a joint to the declaration issued on the occasion of visit to President Gorbachev of Soviet Union of Prime Minister. The President of Gorbachev is the Soviet Union, the Prime Minister Rajiv Gandhi made a peaceful plea of the elimination of the nuclear weapon. There is a most important. There is a in the USSR, the President of Gorbachev of Soviet Union, there is a Prime Minister of Rajiv Gandhi made a forcefully pace of the elimination of nuclear weapon. There is the most important point here. The Delhi is a declaration of immigrated the 10 principle of building of nuclear weapon of free world. In 1988, the Rajiv Gandhi proposed on the action plan for the uranium their nuclear weapon free and non-violent world order. The action plan is invocated to the blinding commitment by all the nations of their elimination of the nuclear weapon in stage by 2010. India is also an original signature to be the chemical is a weapon conventions having the signet it to its own Jan 19
is Jan is a 14 1993 and was among their first 65 countries to have ratified their threat. In 1993, India is sponsored a resolution on their comprehensive test ban along with the USA within the overall framework of advancing toward nuclear disarmament. India was a distress went to the final version of the CTBT and was rushed through there without consent. And it is a failed to address the security reason of India and it is a probability stood against the stability of function in which the some test use or canal where there is a spotocrated nuclear test were not in way. India has a conduct of nuclear test in 1998 could be a link to the unfair framework of CTBT. Though many initially Musculador stood India as a test are negative development for discriminant. India is pledged to the continue to the work for equivalent and non-discriminatory nuclear discriminant. The next point here is the most important here. India as a participation in a UNA peacekeeping. There is the most important. India has a participation in a UNA is a peacekeeping. India has a history of participation in UNA peacekeeping operation is a long one. India as a contribution has been to describe as a excellent by many political observers in UNA. India as a contribution has been to the knowledge by the member of international communities. The peacekeeping stand for a prevention and contaminant and termination of the hostilities between or within the state through their non-offensive activities of multinational force of soldier and police and civil people sent up to the authorities of United Nations with the consent of the countries concerned. Peacekeeping a nation change in its scope and nature according to the need of conflict situation. India has taken part in a 35 of UNA peacekeeping operation in a 4 continent. It is the most significant contribution has been to peace and stability in Africa and Asia. Presently, India is ranked as the larger troops of contribute to UNA. The saga of India as a role in the UNA peacekeeping began with the establishment of the United Nations as emergency force, means UNEF, in the Gaza Strip and the Sinai in 1956 after Israel war against Egypt ended. The Congo in Africa benefited of significantly from a troop presence. India has contributed to keep a unit and integrated of that history in the 1960th centuries. After the end of Cold War, India has contributed to UN peacekeeping is remained significant equally. It is not a more a military person at the request of the United Nations Security Journal of Angola and Cambodia and Somalia, the El Salvador and the Sierra Leone, etc. The many of these countries were victims of chores is caused by the civil war. Non-government machinery is a collapsed was the declaratory of India sent not just troops but police, doctor, engineers and administrators. हमारे समक्ष जो यहाँ पर आया है भारत और संयुक्त राष्ट्र. देखिए भारत और संयुक्त राष्ट्र के साथ क्या संबंध है, दोनों में क्या विशेषताएं हैं, दोनों किस विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं. कहते हैं अगर पहली पॉइंट के अंतर्गत हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र की शांति और निशस्त्रीकरण प्रयासों में भारत का योगदान. देखिए भारत ने सदैव ही इसका वकालत किया है कि वेपन जो किसी भी देश के पास न हो, क्योंकि न्यूक्लियर बम जो होती है कई मायने में खतरनाक होती है और इसका प्रभाव जो हमने देखा भी था हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है, जिसने बहुत ही जो है तबाही मचाया था. तो इसलिए भारत ने हमेशा ही निशस्त्रीकरण के प्रयासों में लगा रहा है और ये हर देश को जो है मानने में और मनाने में लगा रहा है. कहते संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से एक था और इसे क्रियाकलाप का जो है औपचारिक आधार संयुक्त राष्ट्र चार्टर था और विश्व के मामले में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका भी थी. 50 से भी अधिक वर्षों से संयुक्त राज्यों के बीच संबंधों
को बनाने और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को नियंत्रण करने में सहायता कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकों की सुरक्षा, शांति और विकास के बढ़ावा देने में योगदान भी दिया है। निःशस्त्रीकरण के द्वारा संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शांति की दिशा में भी योगदान दिया है। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के निःशस्त्रीकरण के प्रयासों में अधिक योगदान दिया है, यानी भारत ने सदैव ही निःशस्त्रीकरण के लिए वकालत किया है। निःशस्त्रीकरण खतरनाक हथियार पर अंकुश लगाना होता है। देखिए, निःशस्त्रीकरण का अर्थ होता है हथियार के बिना या हथियारों पर अंकुश लगाना। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि निःशस्त्रीकरण किसे कहते हैं, तो आप इतना भी लिख दो कि इससे जो है हथियारों पर अंकुश लगाने को ही निःशस्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसका भारत जो है सबसे अधिक पक्षधर माना गया है। उनमें कमी करना तथा यह संभव विनाश भी करना, ये सब निःशस्त्रीकरण के अंतर्गत ही आता है। भारत ने आज़ादी के बाद ये सब विश्व जो है निःशस्त्रीकरण के उद्देश्य को पाने के लिए भेदभाव रहित प्रयास किए हैं। परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता को चलते भारत ने सदैव ही यह विश्वास व्यक्त किया है कि परमाणु हथियार से युक्त विश्व की भूमंडलीय सुरक्षा बढ़ेगी। इस प्रकार भारत ने सदैव ही परमाणु के विनाश और निःशस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है तथा उसे संपूर्ण निःशस्त्रीकरण की ओर जो है पहला कदम भी माना है। यानी भारत ने सदैव ही इसका जो है निःशस्त्रीकरण के लिए अपना जो है सदैव अपना महत्वपूर्ण प्रयास करता ही रहा है और कर भी रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के निःशस्त्रीकरण के प्रयासों में विचारों, संक्रमणबद्धता और पहल करने और भेदभाव को समाप्त करने के पक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1948 में भारत ने परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय शस्त्र भंडार में कटौती करने और परमाणु ऊर्जा को शांति कार्य में प्रयोग करने का प्रस्ताव सदैव रखा है। 1950 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति कोष बनाने का भी प्रस्ताव रखा था और इसके धन के जो है विनाशकारी हथियारों को कम करने और विकास कार्य के लिए प्रयोग किए जाना भी भारत ने इस प्रस्ताव को रखा था। 1953 में भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध की वकालत भी की थी और 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध समझौता का पहला सदस्य भारत ही था। कहते हैं 1964 में संयुक्त राष्ट्र एजेंडा के आधार पर हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध की पहल भी भारत ने ही की थी। यानी भारत सदैव शांति का ही विचारकों में से एक माना जाता है, परंतु कुछ देशों के द्वारा ये समझौते के अनुसार कुछ हथियारों पर दृढ़तापूर्वक प्रतिबंध न लगाए पाने से इसके उद्देश्य को जो है पूर्ति नहीं हो सकी। यद्यपि हमारे देश ने यथाकथित रूप से इस समस्या का विरोध किया है। 1984 में भारत ने अर्जेंटीना, यूनान, मस्को, स्वीडन और तांजानिया के साथ मिलकर 6 राष्ट्र 5 महाद्वीप शांति उपक्रम का आरंभ भी किया था। 4 वर्ष बाद सोवियत संघ के राष्ट्रपति गुलबोचो की भारत यात्रा के दौरान एक संयुक्त घोषणा के तहत राजीव गांधी ने भी परमाणु हथियार के विनाश के लिए अपील की थी। कहते दिल्ली जो है घोषणा में परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के जो है 10 सिद्धांत बनाए भी गए थे। 1988 में राजीव गांधी ने एक कार्य योजना का प्रस्ताव भी रखा था जिसका उद्देश्य विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त और अहिंसात्मक बनाना था। इस प्रस्ताव को जो है तहत सभी राष्ट्रों को 2010 तक विभिन्न चरणों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए वचनबद्ध होना था। भारत जैविक हथियारों के सम्मेलन में हस्तक्षेप करने वाला मूल्य सदस्य था और 14 जनवरी 1993 को इस पर हस्ताक्षर पर पुष्टि करने वाले 65 देशों में पहला देश भारत ही था। कहते हैं 1993 में भारत ने परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में अमेरिका के साथ ही संकल्पबद्धता को समर्थन भी दिया। जब व्यापक परीक्षण प्रतिबंध समझौता बिना सर्वसम्मति के जो है सफल हो गया तो भारत इससे बहुत ही आहत हुआ और यह भारत के सुरक्षा प्रयासों के संबंध करने में असफलता भी रहा और इन कारणों से भारत जो था काफ़ी हताश हो गया, क्योंकि भारत चाहता था कि जो परमाणु हथियार है वो सदैव के लिए नष्ट हो जाए और इससे जो है देश को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। इस प्रकार भारत जो है दृढ़तापूर्वक अपने निश्चय पर अडिग रहा। 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण को व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में न्यायविहीन ढांचों से जोड़ा जा सकता है। यद्यपि कुछ राष्ट्रों ने आरंभ में इसे निःशस्त्रीकरण के विपरीत माना। भारत ने बिना भेदभाव के परमाणु निःशस्त्रीकरण के संकल्प को दोहराया, लेकिन कहते हैं जब सबके पास हथियार होगा तो भारत का शकल देखता रहेगा सभी को, तो इसलिए भारत ने भी अपने परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया। पश्चात हमारे समक्ष जो है दूसरा पॉइंट आया है संयुक्त राष्ट्र संघ के
शांति प्रयासों में भारत का योगदान। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में भारत ने जो है प्रमुख योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयास ने भारत के योगदान का इतिहास बहुत लंबा रहा है। कई राजनीतिक प्रेक्षकों ने भारत के इस योगदान की सराहना भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों द्वारा भारत ने को इस योगदान को स्वीकार भी किया गया है। शांति कायम करने का अर्थ है बहुराष्ट्रीय सैनिक, पुलिस और आम जनता की शक्ति द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सलाह से किसी भी देश में आंतरिक अथवा अन्य देशों के साथ संघर्ष को रोकना, कम करना, समाप्त करना होता है। शांति कायम करने वाले देशों की भूमिका संघर्ष और विवादों की स्थिति से अनुरूप माना जाता है। शांति कायम करने वाले इस राष्ट्रों को कार्य क्षेत्र एक विरोधी इसी कारण बदल गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 महाद्वीपों में चलाई जा रही शांति निर्णय की जो है 35 गतिविधियों में भाग भी लिया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान अफ्रीका और एशिया में शांति स्थिरता लाने में है। वर्तमान में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को सबसे अधिक सैन्य शक्ति योगदान देने वाला देशों में माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान की भूमिका 1956 में तब आरंभ हुई जब इजराइल के मिस्र के साथ युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल की जो है गाजी पट्टी के सिनाम में स्थापित हुई। अफ्रीका ने कांगो को भारतीय सैनिकों की उपस्थिति का लाभ हुआ और 1960 के दशक में एकता और अखंडता कायम रखने में भारत बहुत ही सहायक रहा। शीत युद्ध के बाद भी संयुक्त राष्ट्र में भारत का योगदान बना ही महत्वपूर्ण था और सैनिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के निवेदन पर अंगोला, कंबोडिया, सोमालिया, अल सल्वाडोर और सिएरा आदि में भेजे गए। अनेक देश गृह युद्ध के कारण उत्पन्न अव्यवस्थाओं के शिकार थे और भारत ने न केवल सेना ही भेजी बल्कि पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक भी